मेरे बहुत ही प्यारे क्लास 9th ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਮੈਥ ਈਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 9th ਚੈਪਟਰ 8 ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਵੀ ਹੈਵ 8 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 3, 5, 9, 13। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਮਤਲਬ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 3, 5, 9 ਰੇਸ਼ੋ 13। ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਮੈਨੇ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਐਂਗਲਸ ਮੈਨੇ ਕੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ABCD। ਮੰਨ ਲਓ ABCD ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ABCD। ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬੇਟਾ ਪੈਨਸਿਲ ਸਕੇਲ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਰੇਸ਼ੋ 5 ਰੇਸ਼ੋ 9 ਰੇਸ਼ੋ 13 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੈਟ ਐਂਗਲ A ਰੇਸ਼ੋ B ਰੇਸ਼ੋ C ਰੇਸ਼ੋ D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਰੇਸ਼ੋ 5 ਰੇਸ਼ੋ 9 ਰੇਸ਼ੋ 13। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਐਂਗਲ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3x, ਐਂਗਲ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5x, ਐਂਗਲ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9x, ਐਂਗਲ D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ। It means angle A plus B plus C plus D is equal to 360 degree। ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 30x is equal to 360 degree। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲੂ ਆ ਗਈ 360 divided by 30 that is 12। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ this was your 3x ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 into 12 that is 36 degree। ਐਂਗਲ B is equal to 5x, 5 into 12 60 degree। ਐਂਗਲ C is equal to 9x, 9 into 12 108 degree। एंगल D is equal to 13 into 12 ये बन जाएगा थोड़े कोल 156 डिग्री। ये थोड़े कोल एंगल्स बन गए। दिस इज द आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़े ध्यान नाल देखने हैं, समझने हैं। जो नहीं समझ आता तो तुसी मैनू कॉल करके पूछ भी सकते हो। डायगनल्स AC ऑफ ए पैरलोग्राम। डायगनल का मतलब है विकर्ण, पैरलोग्राम का मतलब है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज केड़ी भला ABCD। ਇਹਦਾ डायगनल यानी कि विकर्ण ਜਿਹੜਾ AC है बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट्स मतलब दो बराबर भागों में वंडदा है। आपने ये शो करना है, सिद्ध करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो एंड ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस का मीनिंग की हुंदा पंजाबी दे विच सम चतुर्भुज जिहदियां सारियां भुजावां जिहड़ियां ने बराबर होण। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ बड़े ध्यान नाल पहला स्टेटमेंट देखो। पैरलोग्राम ABCD ਦਾ ਜਿਹੜਾ डायगनल AC है
वो एंगल ए नू बाइसैक्ट करता है। हुण देखो मैं ये बनाई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डायगोनल AC है वो एंगल A नू बाइसैक्ट करता है, मतलब ਜਿਹੜਾ आह कोण है वो इस कोण के बराबर है। हुण इत्थे मैं 1 2 किसी नू नेमिंग की हुई है, तो मैं इत्थे ले लिया एंगल 3 एंगल 4, मतलब गिवन दे विच हो गया मेरे को कि ਜਿਹੜਾ ABCD एक पैरलोग्राम है तो एंगल 3 ਜਿਹੜਾ वा एंगल 4 ਦੇ की है बराबर है। उस तो बाद आपां ने की सिद्ध करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। ਇਹਦਾ मतलब वी हैव टू प्रूव दैट कि ਜਿਹੜਾ आ एंगल C है, आ देखो आ एंगल C है फुल BCD ये C है, ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ 1 है कोण 2 ਦੇ बराबर है। ਹੁਣ देखो इट बाइसेक्ट्स एंगल ਆਪਾਂ ने कोल गिवन है कि डायगोनल AC ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A यानी कि एंगल 3 एंगल 4 ਦੇ बराबर है। तो ਆਪਾਂ ने सिद्ध की करना इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो इज दैट व्हाट टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंड सैकेंड पार्ट अपन ये प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। हुण सानू पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम होंदी है, पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम दी जिहड़ियां अपोजिट साइड्स है वो बराबर है, यानी ABCD दे बराबर है तो BC जिहड़ी है AD दे बराबर है। हुण ये तो आमने सामने दियां तो बराबर है, जदों असीं चारां नूं बराबर प्रूव करना है तो मतलब कि आपां अगर एक साइड नूं दूजी साइड के बराबर प्रूव कर दईए, यानी AB नूं BC के बराबर प्रूव कर दईए तो साडी कंडीशन जिहड़ी है वो कवर हो जाती है। इहदा मतलब जे ABCD नूं रंबस प्रूव करना है, आपां ने की प्रूव करना है कि AB जिहड़ी है वो BC दे बराबर है। देखो बेटा रोम्बस मतलब हुंदा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज दियां मतलब चारों भुजावां बराबर आपां ने प्रूव करनियां ने। उस तो बाद आपां कोल पैरेललोग्राम दित्ती हुई है, दो भुजावां तां बराबर हैगियां ही ने, इधर वाली जिहड़ी इधर वाली दे बराबर है, आमने सामने दियां सन्मुख जिहड़ियां ने ऑपोजिट साइड्स जिहड़ियां ने वो बराबर ने। ਇਹਦਾ मतलब आपां कोल रह के गया प्रूव करने वाला, जे असीं एक साइड ए वाली नूं इस दे बराबर प्रूव कर दिंने आ तो साडी जिहड़ी कंडीशन है वो कवर हो जाएगी तो ABCD एक रंबस प्रूव हो जाएगी। हाँ जी देखो प्रूफ, प्रूफ दे विच अगर असीं कंसीडर करते हैं, आपां ने ये प्रूव करना है कि AB बराबर है प्रूव करना है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 दे। हुण देखो बड़े ध्यान नाल ये साडे कोल पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम दी कंडीशनस असीं कीतियां होईयां ने, ਉਹਦੇ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्योंकि जिहड़ी AB लाइन है वो CD लाइन दे पैरेलल है, जदों पैरेलल होण तां साडे कोल इंटीरियर एंगल्स है जिहड़े वो इक्वल होण। हाँ जी देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है जिहड़े बराबर होणगे, यानी कि कोण एक जिहड़ा है कोण 4 के बराबर होएगा। साडे कोल अगर दो लाइनां पैरेलल ने ना और एक लाइन जे इहनूं इंटरसैक्ट करदी है तो ये आपां नूं पता है भी आह वाला जिहड़ा एंगल हुंदा है वो इस एंगल के बराबर हुंदा है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इहनूं बोलदे हैं। हुण इसे तरह ही एंगल 1 4 के बराबर होएगा, 2 जिहड़ा 3 के बराबर होएगा। आपां लिखांगे बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम therefore angle 1 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to angle 3। alternative interior angles इकांतर कोण जिन्हों पंजाबी च कहंदे ने, दैट इज इकांतर कोण जिन्हों पंजाबी दे विच कहंदे ने, ये प्रॉपर्टी हुंदी है। हुण पर सानू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है, देयरफॉर क्योंकि 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, पर 3 4 के बराबर गिवन हैगा, इसलिए एंगल 1 बराबर है एंगल 2। यही चीज़ आपने प्रूव करनी सी, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन एंगल 1 बराबर एंगल 2 मतलब कि जिहड़ा तुहाडा C है सॉरी AC है जिहड़ा बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सैकेंड पार्ट दे विच हुण आपां ने अपने कोल कंडीशन ये है, देखो 1 एंगल 4 है, 2 एंगल 3 है। हुण एंगल 1 है 4 के बराबर, 2 बराबर 3 है, तो 1 जिहड़ा वा 3 4 के बराबर है, तो 1 3 के बराबर भी हो गया, चारों एंगल बराबर हो गए ना। हुण एंगल 1 है जिहड़ा 3 के बराबर भी हो जाऊगा,
एंगल 2 है जिहड़ा वो 4 के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि जिहड़ी आ कंडीशन आपां ने प्रूव की है ना, इन्हां तिन्नां कंसैप्टां तो साडे कोल जिहड़े ये कोण है ये सारे ही बराबर आ गए, सारे ही बराबर आ गए। तो इत्थों जिहड़ा एंगल 2 है वो एंगल 4 के बराबर आ गया। एज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। हुण ये किहड़ी प्रॉपर्टी लाई है असीं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी, समदोबाहु त्रिभुज सिद्धांत। भी समदोबाहु त्रिभुज सिद्धांत ये कहता है कि जेकर दो कोण बराबर है तो उन्हां दीयां कोरसपोंडिंग जिहड़ियां भुजावां ने वो भी की होणगीਆਂ बराबर होणगीਆਂ। जे भुजावां बराबर हो गईयां तो इत्थों की आ गया ए बी सी डी इज ए रोम्बस। देखो बेटा ध्यान नाल कंसैप्ट नूं ध्यान नाल देखना है। आपां ने पहला लिखना है कि भी किहड़ी चीज़ सानूं दित्ती है ते किहड़ी चीज़ असीं प्रूव करनी है। जिहड़ी चीज़ असीं प्रूव करनी है उहनूं असीं एक शॉर्ट फॉर्म दे विच कन्वर्ट करते हैं ताकि वो क्वेश्चन नूं आपां आसान बना सकीए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ तुहानूं। हाँ जी, क्वेश्चन है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम मतलब पता लग गया होना तुहानूं, समांतर चतुर्भुज। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दो पॉइंट ने P ते Q आर टेकन ऑन द डायगनल बी डी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ दो पॉइंट P ते Q ने बी डी ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ कि डी पी बराबर बी क्यू। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਵਨ ਲਿਖਿਆ कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ डी पी बराबर बी क्यू। देखो आ मेरे को एक पैरेललोग्राम मैं बनाई है, देखो बुक दे विच, क्योंकि ये मेरे को फिगर बनी हुई सी, इनू मैं बनाने की कोशिश की है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम ते आ जिहड़ी तुहाडी बी क्यू है लाइन वो डी पी लाइन दे बराबर है। आपां ने हुण सिद्ध करने बहुत सारे पॉइंट, मैं जान के बहुत बिग सोल्यूशन वाला क्वेश्चन लिया ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए। हुण इहदे विच जिहड़े पॉइंट मैं सिद्ध करने ने उन्हां नूं मैं टू प्रूव दे विच लिख लिया। हुण मैं फर्स्ट पॉइंट प्रूव करन जा रही हाँ, दैट इज ट्रायंगल APD congruent triangle CQB। In triangle APD and triangle CQD, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਗਰੈਂਸੀ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਗਰੈਂਸੀ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ASA, ਦੋ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ट्रायंगल दी दूसरे दे बराबर होवे, 7th विच भी कीतियां ने, 8th विच भी इन्हां दी यूज़ हुंदी है तां ओह कॉन्ग्रेंट हुंदी है। SSS, एक ट्रायंगल दियां तीनों साइडां कॉरस्पोंडिंग ट्रायंगल दियां तीनों साइडां दे बराबर होवे। नंबर 3 कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल रूल मैं तुहानूं दस रही हाँ। SAS, दो साइडां दे विचला एंगल जदों दूसरी दे कॉरस्पोंडिंग दे बराबर होवे। RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इस तो बिना एक होर अल्टरनेटिव असीं यूज़ करते हैं, वो हैगी है AAS। इसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो ये ड्राइव हुई हुंदी है, इनू भी लेकिन असीं क्वेश्चनां दे विच यूज़ कर लैंदे हां। क्योंकि देखो जे कोई ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल असीं कंसिडर कर रहे हैं, उन्हां दे कोई दो एंगल मान लो सेम ने, दूजी ट्रायंगल दे दो एंगलों के नाल सेम हैगे ने, तो बेटा तीसरा एंगल ऑटोमैटिकली बराबर होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हुंदी है साडे कोल। एंगल सम प्रॉपर्टी की हुंदी है? एंगल सम प्रॉपर्टी हुंदी है सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उस करके तीसरा एंगल ऑटोमैटिकली बराबर हो जाएगा। जे दो एंगल किसी ट्रायंगल के दूजे ट्रायंगल के दो एंगलों के बराबर होए तो तीजा ऑटोमैटिक बराबर हो जाना है। इस करके ASA तो AAS भी ड्राइव हो जाती है, तो इनू भी असीं डायरैक्टली यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, इन ट्रायंगल APD एंड CQD हुण आपां ट्रायंगल कंसिडर करिए, जो देखिए किहड़ी किहड़ी चीज़ बराबर है। आपां नूं दिता होया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पहली गल तो एक DP बराबर है BQ दे, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 तुहाडे कोल AB जिहड़ी है वो किहदे बराबर है?
सी डी दे आपां क्योंकि लै रहे हैं सी, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, हाँ जी, सी क्यू बी लैनी है असी, सी क्यू बी, सॉरी सी क्यू बी आपां ने इधर वाली लैनी है एंड ए पी डी। हुण ये दो ट्रायंगल लैनी है, मैंने पहले नंबर 1 ते 2 लिखना जिहड़ियां मैं कंसीडर कर रही हाँ, जिहड़ियां ट्रायंगल आपां कंसीडर कर रहे हैं इस तो बिना आपां सारियां नूं भुल जाना। हुण देखो नंबर 1 ट्रायंगल है, नंबर 2 ट्रायंगल है, हुण इहदे विच एक तां तुहाडे कोल आह वाली साइड बराबर है, नंबर 2 ते तुहाडे कोल बी सी जिहड़ी है वो ए डी दे बराबर है। ठीक है जी, क्यों बराबर है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन करके जिहड़ा आह कोण आ रहा है से दिस एंगल 1, ठीक है, वो इस एंगल 2 दे भी बराबर है, क्योंकि यह की है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तीन चीज़ां जे बराबर हो जाण तो बड़े आराम दे नाल असीं लिख लैंदे हां। हाँ जी, तो 3 कंडीशनस वी हैव, किहड़ियां किहड़ियां? पहले नंबर 1 ते आ गया डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये थोड़े कोल गिवन कंडीशन है। ठीक है जी, उस तो बिना ए डी बराबर बी सी, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन द थर्ड कंडीशन एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, जिन्हों कि मैं एंगल 1 एंड 2 किया। दिस इज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, इस करके जी ट्रायंगल है वो तीन जो बराबर हो गई, दो साइडा ते विचला एंगल, देखो बड़े ध्यान नाल, दो साइडा ते विचला एंगल दूसरी ट्रायंगल दियां दो साइडा ते विचले एंगल के बराबर होया। देखो आ साइड है विचला एंगल, तो केड़ी प्रॉपर्टी लग गई? केड़ी प्रॉपर्टी लग गई? ए डी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी बी क्यू, विच प्रॉपर्टी? एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है जी, नाउ जे साडे कोले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रेंट आ गया, इत्थों की आ गया ए पी बराबर सी क्यू, इनू आप कह दें सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ द कोरसपोंडिंग ट्रायंगल। ठीक है जी, ਜਿਹੜੀਆਂ भी साडे कोल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, अगर वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाण तो उन्होंने जिहड़े बाकी पार्ट है वो भी की हुंदे ने, बराबर हुंदे ने। यानी कि इनू आपां लिखते हैं सी पी सी टी, लेकिन इसदा मीनिंग हुंदा है कोरसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। इस बेस के नाल बाकी पार्ट भी जिहड़े हुंदे ने इक्वल हुंदे ने। हाँ जी, ये साडा फस्ट पार्ट हो गया सीगा, इत्थों साडा सैकेंड पार्ट आ गया। नाउ सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दे विच असीं कंसीडर कर लेणियां ने दोबारा तो ट्रायंगल्स ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। हुण इहनूं तुसीं नोट अपने आप करोगे, मैं सिर्फ तुहानूं दस दूंगी कि इहदे च किहड़ियां किहड़ियां तीन चीज़ां बराबर है। पहलां तां आपां देखिए ट्रायंगल ए क्यू बी, दिस इज ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल सी पी डी, दिस इज ट्रायंगल नंबर 4। मैं 3 नूं भी इदां दा ही 3 बना लिया। ये दोनों कंसीडर करनी है, बाकी सारियां भुल जानियां। हुण देखो आ जिहड़ी साइड है वो इस साइड के बराबर है। ठीक है बच्चे, उस तो बाद बी क्यू जिहड़ी है डी पी के बराबर गिवन है, ए बी जिहड़ी है सी डी के बराबर तां है क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ते आ जिहड़ा एंगल है से दिस एंगल 3 एंड से दिस एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों है? क्यों है भाई? आल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इस करके ये जी ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल की होगी कॉन्ग्रेंट होएगी। जो कॉन्ग्रेंट होएगी तो कोरसपोंडिंग पार्ट भी बराबर होंगे ने, इसका मतलब आ जी साइड है वो इस साइड के बराबर आ जाऊगी। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ठीक है जी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ये थर्ड पार्ट के तुसीं इन्हां नूं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दोगे, किहड़े नियम नाल होणगे ये? एस ए एस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, मैं फटाफट जो कहो तो लिख दिनी हाँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेटिव इंटीरियर। ठीक है जी, ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड्स
ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BQ इज इक्वल टू PD जिहड़ा वै तुहाडे कोल गिवन है। इसलिए ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPD, SAS कॉन्ग्रेंट एक्सियम, कॉन्ग्रेंट रूल भी कह सकते हैं आप। देयरफॉर ये थर्ड पार्ट हो गया प्रूफ। पार्ट 4 इत्थों ऑटोमैटिक आ गया कि AQ इज इक्वल टू CP, corresponding part of congruent triangle. Therefore APCQ is a parallelogram। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि ए ਆਪਾਂ ने सैकेंड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ प्रूफ करता ਸੀਗਾ कि AP बराबर CQ है एंड द फोर्थ पार्ट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ने प्रूफ करता कि AQ बराबर CP है। इस करके therefore APCQ is a parallelogram, hence proof। ठीक है जी। now see one more question, this was question number 9। now question number 10 of exercise I am going to prove ABCD is a parallelogram। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ABCD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। AP and CQ are perpendiculars from A and C on the vertices on the diagonal BD। यानी आ भी परपेंडिकुलर है तो आ भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल है। ਆਪਾਂ ने प्रूफ करना है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQD। बिल्कुल उसी तरह ही ਆਪਾਂ ने ले लेना वै APB एंड ट्रायंगल CQD। पहला देखो की चीज़ां जड़ियां ने बराबर ने। हाँ जी बेटा, पहली गल जो असी ने कंसीडर की है APB तो CQD, ਆਪਾਂ देखिए ये विच है किहड़ी है। दिस इज APB एंड CQD। देखो AB बराबर CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि ABCD तो एक पैरेललोग्राम दी हुई है। उस तो बाद एंगल आ भी 90 डिग्री का दिता हुआ है APB। ठीक है जी, इनू एंगल 1 कह लो, इनू एंगल 2 कह लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 गिवन, ये भी तुहानू गिवन है। ठीक है, उस तो बाद एंगल आह जिहड़ा हैगा 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये किहड़े कोण है? पिछले क्वेश्चन च भी आपां यूज कीते सीगे, आल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण। ठीक है जी। देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQD। हुण देखो ये तुहाडे कोल ना AS प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि देखो कोण A दोनों ने, साइड A वाली है, AS कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है जी, कॉन्ग्रेंट हो गई। मैं तुहानूं दस्सिया सी ये भी रूल आपां यूज कर लैंदे आ। हुण जिहड़ा सैकेंड पार्ट है इहदा वो आपां डायरैक्ट ही लगा देंगे, नाल आपां लिख देंगे CPCT। एक बार फिर दस देनी है तुहानूं इहदा मीनिंग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हाँ जी, मैनूं उम्मीद है तुहानूं समझ आ गए होणगे। इस दे नाल ही एक्सरसाइज 8.1 तुसीं कंप्लीट करनी है एज होमवर्क। वीडियो नूं लाइक करना है, शेयर करना है, सबसक्राइब भी करना है चैनल नूं, क्योंकि जो चैनल नूं सबसक्राइब करोगे तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आती रहेगी। तद तक लिए इजाज़त दिओ। थैंक यू वेरी मच।